CS 206 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूनिट 3 पढ़ेंगे। यूनिट 2 हो चुका था, 1 हो चुका। 3 में है डिसीजन एंड लूप्स। इसके अंदर डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स में इफ स्टेटमेंट, इफ देन, द इफ देन एल्स, switch case, jump statement, while loop, do while loop, this are important, these are important, okay, while loop construct में array and these, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, वो इसमें क्या क्या पढ़ना है। चलो, तो आई हैव अ कंसाइज वे ऑफ curated notes, so इसमें देख लेते हैं decision and loop constructs. Introduction. Java provide decision making and loop construct to control the flow of execution. Java provide decision making and loop construct to control the flow of execution. These helps the program make choice and repeat action until a condition is met. So this helps the program make choice and repeat actions until the condition is met. क्या है? 1 second. They make program logical, efficient and interactive. Objective. After studying this unit, you will be able to use decision statement to control flow, decide on condition, use loop to perform repetitive tasks, understand array for sorting multiple values. Okay, decision constructs are used to execute different statement based on condition true and false. If the if statement used to test a condition, if the condition is true, which block of code will going to execute. ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका देखो कैसे स्ट्रक्चर है। if condition and then the statement, if marks is greater than equal to 40 then print pass. If else statement provides two alternative path if else, okay, if only one path, मतलब if the condition is true then print this, and if else gives the two alternative path, one executes when the condition is true, the other when false. Okay, example, if and else. If condition statement 1 else, yeah, if marks is greater than or equal to 40 then print that, otherwise else. If and if और else का पार्ट हो गया। then the switch case statement used when multiple condition are to be checked, compare a variable against multiple values. switch वेरिएबल यहाँ पे चेक करेगा, ओके, कोई वेरिएबल है जैसे कि ट्रू, मान लो कि वेरिएबल में स्टोर है ट्रू, स्विच ट्रू है, तो केस 1 में वैल्यू 1 कॉलन लगेगा और सेमी कॉलन के बाद ब्रेक लगेगा, ठीक है। इफ वैल्यू 1 आता है, वेरिएबल्स का अगर वेरिएबल में वैल्यू 1 स्टोर है तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है, स्टेटमेंट में जो लिखा रहेगा, नहीं तो केस 2 चेक करेगा वैल्यू 2, अच्छा, तो उसके तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, चेक करेगा इसमें क्या, इस वेरिएबल में जो स्टोर है उसका वैल्यू 1 अगर स्टोर है तो ये करेगा, वैल्यू 2 अगर स्टोर तो ये करेगा। और डिफॉल्ट में अगर कुछ भी नहीं मिला उसको, एल्स का पार्ट में क्या होता है कि if element is find the truthy value then it will print, if otherwise वो false प्रिंट करता है। वैसे ही एल्स वाला पार्ट में जाके false मिलता है तो एल्स वाला पार्ट में जाता है, वैसे ये डिफॉल्ट है स्टेटमेंट जो प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे स्विच डे 1 डे 2 डे 3, अगर डे 1 है, ठीक है, तो मंडे प्रिंट करेगा, ब्रेक लगेगा, ब्रेक नहीं लगेगा तो मतलब इनफिनिट चलते रहेगा। द जंप स्टेटमेंट यूज टू अल्टर द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, टाइप ऑफ जंप स्टेटमेंट लाइक ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न, exit from loop or switch. टाइप ऑफ जंप स्टेटमेंट, ब्रेक क्या करता है, एग्जिट फ्रॉम लूप, है ना, कंटिन्यू, स्कीप करंट इटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट, स्कीप करता है करंट एंड मूव टू द नेक्स्ट, रिटर्न एग्जिट फ्रॉम द करंट मेथड, ब्रेक करता है एग्जिट फ्रॉम लूप और स्विच, ठीक है, मिल जाने से। लूप लगा फॉर का इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेट मतलब यहाँ पे इंट जो है आई में 1 स्टोर है, 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5 ईयर्स, तो प्लस करेगा i2 हो जाएगा, जैसे 3 हुआ ब्रेक हो जाएगा मतलब एग्जिट हो जाएगा, बंद, ठीक है, 1 और 2 भी प्रिंट करेगा ओनली। लूप कंस्ट्रक्ट, लूपिंग अलाउज अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड
repeatedly until a condition is false. While loop condition is checked before execution. While loop condition is checked before execution से पहले condition check करेगा. Use when the number of iteration in unknown. While condition statement print करेगा. Example int I is equal to while I is less than equal to 5, I 5 है less than equal to 5, yes करेगा ये चलते रहेगा. ठीक है, I को प्रिंट करते रहेगा. Do while loop condition is check after exit. एक बार तो एक बार चलेगा ही, उसके बाद चेक करेगा. It doesn't mean कि true है या false है. Do first do and then check. ऐसा कंडीशन इज चेक आफ्टर एग्जीक्यूशन. इंश्योर द लूप रन्स एटलीस्ट वंस, मतलब पहला. डू स्टेटमेंट वाइल कंडीशन. डू आई इज इक्वल टू स्टेटमेंट करना क्या है, फिर वाइल इसको चेक करेंगे. फॉर लूप मोस्ट कॉमनली यूज्ड लूप. ठीक है, फॉर लूप यूज व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन. इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट देन द स्टेटमेंट. इंट आई. ठीक है. एरे. एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स. अगर यहाँ पे जावा में बात करें एरे क्या है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी. ठीक है. ईच एलिमेंट इज एक्सेस्ड बाय इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो. एरे हेल्प्स टू सॉर्टिंग मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल. डेटा, देखो इसको कैसे करना है, लिखते कैसे हैं. डेटा टाइप एरे का नेम दो एंड दिस एरे साइन द स्क्वायर ब्रैकेट. ओके. न्यू डेटा टाइप इक्वल टू साइज. यहाँ पे एरे डिक्लेयर किए हैं. एग्जाम्पल इंट डेटा टाइप इंटीजर का ही डेटा स्टोर होगा एरे में. एंड मार्क्स एरे का नेम एंड दिस द साइन फॉर एरे. और यहाँ पे इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट का अंदर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर है इंटीजर ओनली. सिस्टम टू मार्क्स 0. अब 0 मतलब 0 इंडेक्स में 90 है, 1 इंडेक्स में 80 है एंड 2 इंडेक्स में 70. अगर यहाँ पे 2 रहता तो इट विल प्रिंट 0 1 2 विच इज 70. एडवांटेजेस ऑफ एरे में अगर बात करें तो इजी टू एक्सेस मल्टीपल वैल्यू यूजिंग इंडेक्स, रिड्यूस कोड लेंथ, easy to manage large data sets. Okay, these are related to array. अब यहाँ पे देख लेते हैं. इफ एल्स स्टेटमेंट देख लिए हैं, स्विच देख लिए हैं, एरे भी पढ़ लिए. वन डायमेंशनल वेट. एरे के अंदर वन डायमेंशनल एरे है. क्रिएटिंग है यूजिंग न्यू ऑपरेटर है. न्यू ऑपरेटर से क्रिएट, देखो एरे बना सकते हैं इस तरह से. मल्टी डायमेंशनल 3 डायमेंशनल एरे. ठीक है. तो मोस्टली डायमेंशन से कुछ नहीं, कुछ कोड मतलब प्रोग्राम लिखने आ सकते हैं, बट अगर नॉलेज ले तो डेफिनेशन दीज आर इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके. नेक्स्ट क्या है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, यूनिट 3 डन. नेक्स्ट करेंगे फिर